وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ ساؤنڈ کا مت قریب الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین صدق اللہ علیہ وسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم عزیز ساتھیو، قاسم نگر کالونی، پکیرالا، پلی گاؤں، منڈل ایلون، ضلع ہنم کنڈا، تلنگانہ اسٹیٹ۔ اس وقت یعنی آج 15 اپریل 2026 بروز چہارشنبہ موٹر فٹ ہو رہی ہے اس ضمن میں، خاص طور سے جو ہم لوگ آئے ہیں آپ حضرات کے سامنے ماشاءاللہ مسجد کی تعمیر بھی ہو رہی ہے۔ نماز کے بارے میں تھوڑی دیر خصوصاً بات ہو رہی ہے، غور سے سنیں۔ نکال رہے ہیں نا سب، میرے واٹس ایپ پہ ڈالو۔ تو نماز پڑھنا فرض ہے، بولو نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کتنے نماز پڑھنا؟ 5 وقت نماز پڑھنا، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ تو معلوم ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا بھی فرض ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے۔ آج بروز چہارشنبہ 15 اپریل 2026 صبح فجر کی نماز کے بعد یہاں پر پہنچے ہیں ہم ککرالا پلی گاؤں محلہ قاسم نگر۔ یہ مسجد کی تعمیری کام چل رہا ہے اور یہاں پر جو سنگ تراش علاقہ ہے یہاں پر مسجد کے لیے بور کا جو ہے کام چل رہا ہے۔ اسی ضمن میں حضرت مولانا سید ایوب قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ناظم مجلس تحفظ ختم نبوت ہنمو کنڈا، یہ سنگ تراش برادری میں ایمان اور عقیدے کی بات نماز کے عنوان پر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر قائم رہنے اور مضبوطی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا چھوڑنا اتنا خطرناک، اتنا ڈینجر کام ہے، یہ گویا کہ مشرکین میں سے چلے جاتے ہو، اتنی بڑی بربادی وجہ۔ نماز چھوڑنا عام جرم، عام گناہ نہیں ہے، بہت خطرناک گناہ۔ آج ہمارے جو مسلمان بولنے والے دیہات کے خاص طور سے جو لوگ ہیں نا، 5 نماز تو 5 نماز جمعہ کی پابندی بھی نہیں کر رہے ہیں، سمجھو جمعہ کی پورے لوگ۔ یہ مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو مسجد یہ سنگ تراش بننے سے علاقہ ہے۔ پہلے ہی خاص فکر دلائی جا رہی ہے۔ دیکھو مسجد بنانے سے زیادہ اس کو آباد کرنا ضروری ہے، کریں گے بولو انشاءاللہ۔ ہاں، کیونکہ مسجد بنانے سے یہ تو سب کو معلوم ہے، مسجد بنانا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری اس کو آباد کرنا، سمجھے؟ ہاں، اس سے زیادہ ضروری اس کو آباد کرنا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، کیونکہ ہر گاؤں میں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ مسجد بننے سے پہلے کیا بول رہے ہیں؟ مول صاحب مسجد بناؤ، مول صاحب مسجد بناؤ، مول صاحب مسجد بناؤ بول رہے ہیں، لیکن مسجد بننے کے بعد مسجد کو آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، آپ لوگ تو ایسا دھوکہ نہیں دیں گے۔ زبان سے تو بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، مسجد بناؤ، مسجد بناؤ، مسجد بناؤ، مسجد بنانے کے بعد مسجد میں آ کے نماز پڑھتے نا؟ ارے بولو، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ہاں، پکی بات بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، ہاں پکا بولتے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ مسجد بننے سے پہلے مول صاحب سکھانے والے روزانہ آ رہے ہیں، سیکھیں گے بھی، بولو انشاءاللہ۔ ہاں دیکھو
कुरान में अल्लाह ने बोला नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, बल्कि कुरान में जगह जगह तालीम दिया। तो नमाज तो 5 वक्त पढ़ना, फिर अल्लाह सोना दिया, चांदी दिया, दौलत दिया, पैसा दिया, अब टोटल डाल लिए, अरे कितना हो गया, अरे मेरे पास 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, टोटल आ रहा। तो ज़कात निकालना कई लोगों के ऊपर ज़रूरी है, लेकिन नहीं मालूम हो कि कई लोग ज़कात नहीं निकाल रहे। तुम्हारा रमज़ान में ज़कात निकाले क्या? नहीं निकाले। अक्सर गाँव वाले ज़कात के बारे में मालूमात भी नहीं कर रहे हैं, क्या है वो साहब, वो कब निकालना, किस वक्त निकालना, कि टोटल कितने हो गए, तो डाल दिए टोटल 1 लाख रुपये। अरे ज़कात तुम्हारे पर फ़र्ज होगी ना, हमको नहीं मालूम। कई लोग अब खेती बाड़ी करने वाले हैं, तो खेती बाड़ी में उशर निकालना, समझो असल टॉपिक तो चल रहा है नमाज का, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को छोड़ दिया। ये नमाज कायम कर रहे हैं, उनका मतलब है कि दीन बाकी रख रहे हैं। तो तौहीद के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है बोलते? नमाज। शिरक नहीं करना, तौहीद के ऊपर पक्के रहना। इस्लाम के 5 अरकान में पहले तौहीद, फिर नमाज। अब अक्सर औरतें, अक्सर मर्द तकरीबन गांव के अंदर 5 नमाजें नहीं पढ़ रही। बाज़ लोग बाजू महिला इन्हें ककराला पे ले जाके पढ़ लेके आ रहे, बाज़ लोग कर रहे, पूरे लोग नहीं कर रहे, समझे। हालांकि देखो, एक है ईद की नमाज, एक है 5 नमाज। ईद की नमाज पढ़ना क्या है, वाजिब है, ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी 5 नमाज, उससे ज़्यादा ज़रूरी। हाँ, तो ईद की नमाज को 100% आ रहे हैं, 5 नमाज को, हत्ता के जुमा की नमाज को जितने लोग ईद को आ रहे हैं उतने जुमा की नमाज को आ रहे हैं क्या? तो नहीं। अब पूछते हैं इनको जुमा साहब को, ईद के दिन गाँव के तकरीबन लोग 100 लोग थे, जुमा के दिन 30-40 लोग आ रहे हैं, तो मतलब एक तकरीबन 50-60 लोग जुम्मा कर रहे हैं। चलो इधर उधर थोड़े पढ़ ले रहे हैं, तो 40 लोग भी जुम्मा छोड़े, एक आदमी भी जुम्मा नहीं छोड़ना, एक आदमी भी नहीं छोड़ने का। तो 2 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी नहीं, 30-40-50 लोग जुम्मा छोड़ रहे हैं, बोल तो बहुत बड़ी बर्बादी है, बहुत हलाकत है, तबाही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों जुम्मा छोड़ने से बचो वरना बर्बाद हो जाते हैं, बोले बर्बाद हो जाते हैं, बोले इतना बड़ा मसला है, इजी ले रहे हैं जुम्मा क्या। इसलिए कमेटी वाले, अब आप लोग भी है जिम्मेदार, जुम्मे के दिन खास तौर से फिक्र करके एक आदमी भी जुम्मा नहीं छोड़ना। वर्तन पेट चले जा रहा, नमाज पढ़ लिया, हनमकुंडा चले गया, नमाज पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन मुकाम पे रह के मजबूरी भी नहीं है। मजबूरी बोल तो पैरा टूट के मस्जिद को नहीं आ सकता, मजबूरी, सख्त बीमार है उठ के नहीं आ सकता, मजबूरी, लेकिन मजबूरी भी नहीं है, अच्छे और मर्द है, औरत नहीं होता है, फिर भी हाँ खेती बाड़ी बोल के, पत्थर काटने जाता हूँ बोल के क्या कर रहे हैं, नमाज छोड़ दे रहे हैं। अरे जुम्मा की नमाज भी छोड़ दे रहे हैं। कई गांव में, कई देहातों में, सब तकरीबन हर गांव में कोई ना कोई जुम्मा छोड़ने वाले ज़रूर है। कोई ईद के दिन पूरे आ रहे, जुम्मा की नमाज को नहीं आ रहा, जबकि एक नमाज भी नहीं छोड़ना, क्योंकि नबी देखो जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को छोड़ दिया। अब आप लोगों से पूछे, अरे तुम दीन को छोड़ देते क्या हो, तो नहीं बोलते, दीन को छोड़ देना उतना बड़ा मसला है, नमाज गई दीन गया मसला। तो बराए नाम मुसलमान बन के नहीं रहना है, हकीकी मुसलमान बनना, पक्के मुसलमान बनना, सही मुसलमान बनना, ठोस मुसलमान रहना, मजबूत मुसलमान रहना, नाम के मुसलमान। इसकी मिसाल क्या है, देखो अब ये बोतल है, इसको गोल्ड कलर डाल दिया बच्चा, छोटा बच्चा, वो हो रहा है, तुम हमको बोलता है ये सोना है, बोलते सोना हो जाता है, खाली कलर, सोना नहीं होता। तो ज़ाहिरी मुसलमान नहीं, हकीकी मुसलमान होना। ठीक है। और फिर ख़ास तौर से देखो
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 5 तरीके से इकराम था। क्या इकराम था? एक तो उसकी रिस्क की तंगी को दूर कर देता, रोजी रोटी की तंगी को दूर कर देता। अगर हम नमाज छोड़कर पत्थर काटने, खेती बाड़ी बोल के, नौकरी बोल के, इधर उधर जाके कामों को बोल के नमाज छोड़ देंगे तो क्या होता? वो रोजी रोटी जो मिलती ना उसमें टाइट कर देता, तंगी कर देता अल्लाह ताला। मिलता तो उतना ही है जितना कि किस्मत में है, लेकिन उसमें तंगी आ गई, परेशानी आ गई, मुसीबतें आ गई, परेशानी आ गई, बलायात आ गए, टेंशन आ गया तो कोई बरकत नहीं होती। बेकारी बन सका पैसा कमा के परेशान हो जाते। इसलिए हमें क्या करना है कि रोजी रोटी में बरकत होना है तो 5 वक्त पाबंदी से, वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ बोलेंगे, क्योंकि आप लोग नौजवान बच्चे भी माशाल्लाह बहुत से हैं। हाँ, इस गांव के अंदर समझदार भी है, बोले तो फौरन आ जा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिल में एक जज्बा लेकर उठना है। मस्जिद बनने से पहले बोल साहब पूरी चीज़ें भी अच्छा सीख लेंगे, ज़बरदस्त तरीके से हम तैयारी करेंगे, मस्जिद को आबाद हम करेंगे, और फिर ख़ास तौर से पूरे गांव में औरतें नमाजी, बच्चे नमाजी, बड़े नमाजी, सब के सब 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले होंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, एक आदमी भी बेनमाजी नहीं रहना, क्योंकि बेनमाजी बोले तो बहुत बड़ी नहुसत। हाँ, एक भी बेनमाजी नहीं, 5 नमाज है। असल में टोटल मेराज में जब गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे, तो अल्लाह की तरफ से 50 नमाजें हुए। ये बच्चे फर्ज कितने हुए थे? 50 नमाजें फर्ज बोले। मूसा अलैहिस्सलाम मिल के बोले, उम्मत का तजुर्बा करके हमें 50 नमाजें पढ़ना बहुत मुश्किल है, कम करा लो। तो कम करते 5 बोल के बोले अल्लाह। 48 सुनो, 24 घंटे अब वापस आ रहे थे ना, तो अल्लाह की तरफ से ये फैसला बसना दिए, देखो नमाजें पढ़ी जाएंगी, नमाजें पढ़ी जाएंगी 5, लेकिन सवाब 50 का मिलेगा। अल्लाह, देखो 50 का जो सवाब का जो फैसला था उसमें कमी नहीं हुई। ये मजबूरी है, नहीं पढ़ सकते, बल्कि नमाजें कम कर दिए लेकिन सवाब कम नहीं करे। देखो अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम देखो। तो हम जो 5 नमाजें पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो सवाब कितने नमाजों का मिलेगा? 50। कितने नमाजों का मिलेगा? 50। तो ये यकीन करके पढ़ना और दूसरों को बोलना, अरे मियाँ 5 नमाजें पढ़े तो सवाब 50 का मिलता है, मिलेगा। और अगर 5 नमाजें हम छोड़ देंगे 50 नमाजों का सवाब चले आता। अरे बोलो कितने नमाजों का सवाब चले आता? 50 नमाजों का सवाब चले आता। तो बड़ा नुकसान। तो ये नुकसान से भी बचना है। दुनिया देखो चंद दिन की ज़िंदगी, असल क्या है? मरने के बाद की ज़िंदगी। कब्र के अजाब से बचना 1, नंबर 2 क़यामत के अजाब से बचना 2, नंबर 3 दोज़ख के अजाब से बचना। तो थोड़े दिन की ज़िंदगी हम सही कर लेंगे तो मरने के बाद की ज़िंदगी, यहाँ भी दुनिया में चैन सुकून मिल जाएगा और मरने के बाद भी हमको फ़ायदा होगा, समझे। और तो आप लोग पढ़ेंगे तो घर में बोल सकते, तुम लोग आज नमाज नहीं पढ़े तो तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारी खाला को बोलेंगे, अरे तू नहीं पढ़ता है ना, अरे मेरे को बोलता है, क्या बोलते हो। तो इसलिए क्या करना आप लोग ख़ास तौर से, अच्छा नमाज छोड़ के चलो तौबा कर ली तो माफ़ हो, जैसा भी नहीं होता है। अब ये नमाज छोड़ दिए ना फजर, क़ज़ा करना, क़ज़ा करके अल्लाह से माफ़ी मांगना। क्या माफ़ी? अल्लाह मैं फजर की नमाज आज छोड़ दिया था, आइंदा से मैं नहीं छोड़ूंगा, रोज़ाना पाबंदी से पढ़ूंगा, ये छोड़ने का गुनाह जुर्म हुआ, ये माफ़ कर दे बोल के माफ़ी करा लेना, समझे। कल भी ऐसा हुआ तो कल भी तौबा भी करना, नहीं करे तो क्या होता मालूम? तौबा सुनो, हदीस में एक हुक्म, इन्हें फजर छोड़ दिया था, फिर 10 बजे या 8 बजे नींद निशार हुई जो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद फिर तौबा नहीं करा तो एक हुक्म की मिक़दार दोज़ख में डाल दिया जाएगा। एक हुक्म बोले तो 2 करोड़ 88 लाख बरस का रहता।
2 लाख नहीं, 2,88,00,000 प्लस दोजख में जलना पड़ता। अब दोजख में जलते क्या पूछे थे, क्या बोलते थे ना, नहीं जलते, जाते नहीं जाते। हाँ, तो कहाँ जन्नत में जाने का है। तो जन्नत में जाना मतलब नमाज़ छोड़ना नहीं। छूट गई कभी तो सच्चे अल्लाह को बोल के तौबा कर लेना, अल्लाह ये आइंदा से नहीं छोड़ता, मेरे को दो की आग से, खबर के अजाब से, क़यामत के अजाब से बचा दिया, आइंदा से ऐसा नहीं करता बोल के तौबा कर लेना। नमाज तर्क करना, छोड़ना आम गुनाह नहीं होता, बहुत खतरनाक गुनाह, समझो प्यारे नबी साहब। मोमिन और काफिर में फर्क नमाज का छोड़ना। मोमिन नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। अब बोलो, मोमिन की लिस्ट में रहते, काफिर की लिस्ट में रहती, मोमिन की लिस्ट, तो 5 वक्त नमाज पढ़ना, समझो। तो ये नमाज तो बड़ा मसला है, ये दूसरे अमल अलग है, लेकिन नमाज क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। देखिए, इबादत में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। तो इसलिए आज से पक्का आप लोग इरादा कर लो कि इसलिए हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नमाज को नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, और ये पक्का दिल से बोलना, खाली ज़बान से बोल दिए। फिर उसी एक कुत्ते को देखे तो उसकी दुम टेढ़ी थी, तो बच्चा क्या करा मालूम, तो फुकली गोटा लगाया, लगा के तागा बंध दिया। 1 महीने के बाद सीधी होती समझ के निकाले तो टिंग बोल के फिर टेढ़ी हो गई। तो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी कहावत मशहूर होगी। तो हम लोग वैसे नहीं रहना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, हम लोग इंसान कुत्ते की दुम की जैसे नहीं होते। अब देखो कुरान में अल्लाह क्या बोला, खलफ मिन बादिहिम खल्फ, अंबिया के दुनिया से जाने के बाद ऐसे लोग पैदा हुए जिन लोगों ने नमाजों को बर्बाद कर दिया और नफसानी ख्वाहिश के पीछे पड़ गए। 2 जुर्म, एक है नमाजें छोड़ दिए, दूसरा है कि दिल बोला शराब पीऊँ, शराब पीते बैठे, दिल बोला वड्डी खाऊं, वड्डी खाते बैठे, दिल बोला क्या करना है, अरे पिक्चर देखूं, पिक्चर देखते बैठे, दिल बोला ये हराम नाजायज़ काम कर, जोड़े के रकम लेना हराम है, जोड़े के रकम लिए, इस तरह से हराम काम करते बैठे, तौबा भी नहीं करे। अब क्या हो गया, तौबा करेंगे सोच मर गए, होगा मरते। अब क्या है, अल्लाह ताला कुरान में बोल दिया, जिन लोगों ने नमाजों को बर्बाद कर दिया और नफसानी ख्वाहिश के पीछे पड़ गए, यानी दिल जो बोला हराम हलाल तमीज़ नहीं, बस हराम करते गए, नाजायज़ करते गए, बगैर तौबा के मर गए। अन करीब इनको वादिये गए में डाल दिया जाएगा। वादी बोलते गड़ा, गए बोलते गड़े का नाम, उस गड़े में दाखिल को जो नमाजों को बर्बाद करे और नफसानी ख्वाहिश के पीछे पड़ गए। और वो गड़ा कितना खतरनाक रहता मालूम, हदीस में दोज़ख बोलती, अल्लाह मुझे वादिये गए से बचा दे, बोलते दोज़ख खुद पनाह मांगते, उतना डेंजर गड़ा। वो गड़े में किन को डाला जाएगा, जो नमाजों को बर्बाद कर दिए, नफसानी ख्वाहिश के पीछे पड़े, 2 जुर्म को। इसलिए हम नमाजों को भी छोड़ना नहीं और फिर हराम काम करना भी। बड़े बड़े गुनाहों में झूठ बोलना, चोरी करना, चुगली करना, सूद खाना, सट्टा खेलना, शराब पीना, हाँ ये सब क्या है, बड़े बड़े ख़तरनाक गुनाह। तो उन गुनाहों से भी बचना है। 5 वक्त नमाज पढ़ना भी है, नमाज पढ़े तो दूसरे गुनाहों से बचना आसान रहता, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने साफ फरमाया, देखो इन्ना सलाता, यकीनन नमाज तन्हा रोकती है, अनिल फहशाई वल मुनकर, फहश बातें और मुनकर नाजायज़ काम से रोकती है। इन्हें दिल के खुलूस के साथ सही नमाज पढ़ेंगे तो इसका असर क्या होता है, तो दूसरे गुनाहों से बचना आसान होता। देखिए नमाज का फ़ायदा, नमाज अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से सही तरीके से नमाज पढ़े तो उसका फ़ायदा, दूसरे गुनाहों से बचना आसान रहता। तो इसलिए आप लोग 5 वक्त पाबंदी करते हुए दूसरे जो लोग हैं ना, यहाँ के हो या फिर रिश्तेदारों के, तुम ना पढ़े तो बोल सकते, मिसाल तौर पर तुम्हारे चन्नारम से फ़ोन आ गया, वहाँ से फ़ोन आ गया, इधर से लिंगा मारीगोड़म से फ़ोन आ गया, उधर के रिश्ता फ़ोन आ गया, जगन्नाथ पुलिस से फ़ोन आ गया, और फिर या फिर मुश्किल गुड़म से फ़ोन आ गया, ये सब जितने भी रिश्तेदारों से फ़ोन आया, फ़ोन आते ही पूछना क्या फजर नमाज पढ़े क्या, थोड़ा पढ़ लिए तो बोल सकते, खुद नहीं पढ़े तो काम बोलते तू पढ़ा क्या है, क्या बोलते। तो ये फिक्र, जोहर के बाद फ़ोन आया,
अरे क्या अभी जोहर हो गई थी, जोहर पढ़े क्या तुम? बल्कि पूछ ले, नहीं पढ़े। अरे नमाज पढ़ना फर्ज है, नहीं पढ़े तो बहुत बड़ा गुनाह होता, पहले तो नमाज पढ़ ले, पहले दीन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम होते ही फौरन ये सवाल जवाब चलना, ये बातें नहीं कर ले रही, कैसे खैरियत से, तबीयत वगैरह ठीक है, ये सब बातें हो रही, लेकिन दीन के ऊपर बाकी है नहीं है। सहाबा के ज़माने में खैरियत है बोले तो दीन पे बाकी है नहीं, सरक गए, ये था। आज क्या है, पढ़ी अच्छी है तो तबीयत अच्छी है, समझ रहे। सल नमाज पढ़ना है, नमाज छोड़ दिए तो दीन चलेगा, नमाज पढ़ रहे हैं तो दीन बाकी है, समझे। बहरहाल अब बात ख़त्म होने वाली है। देखो देखो 5 चीज़ें बोल के 5 इनाम मिलते। एक तो रोजी रोटी की तंगी दूर होती, दूसरा कब्र का अजाब दूर कर दिया जाता। देखो 5 वक्त नमाज पढ़े तो वक्त की पाबंदी के साथ, कब्र के अंदर रोजाना कब्र बोलती मैं कीड़ों का घर हूँ, मैं मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ बोले तो कब्र के अजाब से बच जाते। 2 हो गए। अब तीसरी चीज़ सुनो कि अल्लाह ताला खास तौर से बगैर हिसाब किताब की जन्नत में शिरक नहीं करे, कुफ्र नहीं करे, हाँ बगैर हिसाब किताब के। तो और चौथी चीज़ क्या है, नामे अमाल सीधे हाथ में दिए जाते, सीधे हाथ में दिए गए तो कामयाब, बाएं हाथ में दिए गए तो खत्म, मौत को पुकारेगा, दोज़ख में दाखिल होगा। और 5वीं चीज़ क्या है, पुल सिरात, दोज़ख के ऊपर एक रास्ता है, बाल से बारीक तलवार से तेज, उसके ऊपर बिजली की तरह गुजर। ठीक है, 5 फायदे भी है नमाज पढ़े तो पक्का पक्का इरादा करके बात खत्म करना है। आप लोग, हाँ आप लोग भी इरादा करो, बात खत्म हो रही, वो बोर बताने वाले 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ देखो वो लोग भी इरादा कर लिए, आप लोग भी इरादा कर लिए, और ये उठने से पहले पक्का दिल से ये बोले तुम लोग इंशाल्लाह, खाली जुबान से नहीं, आज से बोलो इंशाल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। हाँ अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा दीन पर मजबूती से सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बोलो आमीन। चलो बंद कर। अंदर जाके सीधी होती है।